Hello friends, good evening. I hope you're all doing good. So let us begin the class. And so last time we discussed about some gate questions. So today let's again, before the class, does anybody want to say anything or any specific good evening to all? Okay. So yeah, I was saying before the class, does anybody wants to? Okay, then let's begin. Let us first start with example 13. And this 13 example of ESG aptitude book, ECG, sorry, is on page number 363 of the PDF. A right angled cone, it is about the cone. And क्वेश्चन 13 है। Sorry? So क्वेश्चन नंबर कौन सा है? It is question number 13, the cone question. A cone is being revolved. Okay, sir, got it. Some people are saying I've got the answer also.
So I can wait for some time because people are still trying. सर बोल रहे थे कि बेसिक्स है काफी। Sorry. Sorry. What did you say? So this is the ground. I guess enough time has been given, so let us see how to solve it. इसमें क्या करना है कि you have been given that this cone is being rotated about this axis, which is this, on the ground. This is your ground level. Okay, is being rotated. This point is fixed, and the rotation is done till it completes one complete rotation of 360 degrees. तो 360 डिग्री जब पूरा घूम जाएगा ये, खाली तब तक हमें इसको इस ग्राउंड पर ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, करीब करीब यहाँ तक पहुंच जाएगा. ओके, तो इस केस में फिर क्या होगा कि जब ये चीज रोटेट करेगी, इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ओनली these edges will touch. First of all, these edges will touch the ground, and first of all it means we have to find out this length. This is the first step, right? And we have given the height is 12, so this is 12. This is the height of the cone. Apply simple Pythagoras theorem. This is 12, 5. It means this is 13. So the slant height is 13. It means this is 13. Got it? ये 13 आ गया. Now next step is, you know the formula for any curve. The length s of this curve, the center O, is equal to the angle subtended at the center. S is equal to r into theta multiplied by the angle that this arc subtends at the center. So the length of the curve is equal to the radius of curvature and multiplied by the angle subtended by the arc at the center. Using this formula, we can just say that here in our case S is equal to the required answer. Sorry, what do we have to find? Angle. We have to find the angle, right?
So yeah, theta is unknown here, and radius we know is the slant height. The r, small r, is the slant height of the cone. So what is s? Now what is s? Is the length of the arc. तो ये जो cone है आपका, basically it will move, it will traverse a length in this direction like this, equal to the circumference of this portion, which means this part. So this would be the length of the arc. थोड़ा visualize करने की कोशिश करो. So s would become 2 pi r equal to 10 pi, and r would be equal to slant height, which is हमने निकाली अभी 13, implies theta would be s by r 10 pi by 13. So it means the answer is D. अब बताओ, इसको किसी में किसको कोई डाउट है तो मुझे अभी बता सकता है, बताइए. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ बिकॉज इसमें you have to visualize as well as use a formula. So I think people are pretty much clear with this question. Nobody has any doubt. So good. And we can move on to the next question. Now you guys can try question number. Did we do the 9th question last time? हमने 9th. Anybody remembers? Ninth question have we done? No. Okay, so let's do No, sir. 9th. Purely based on geometry and simple, no special formula, nothing. Ankur, page number is 363. ठीक है. So इसमें आपको दिया हुआ है DEC प्लस BFC निकालना है. और मुझे मतलब तो दोस्तों मुझे लगता है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द क्लास शुड बी एबल टू हैंडल. लाइक इसमें गलती मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी करे. somebody is saying Manpreet is saying A. Okay, let us see Manpreet. Just we can wait a moment.
Come on people, come on. अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का हुआ है. इकबाल, कुनार, सरताज, मोहित, फैजल, जतीक्षा, थोड़ा सा आप लोग उसमें आ जाइए, मूड में आ जाइए. अच्छा, रोहन इज सेइंग सर समझ नहीं आया. अच्छा रोहन, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू? द क्वेश्चन इज, सी रोहन, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. इसमें आपको ये फिगर दी हुई है जो मैंने ड्रॉ करी है, एंड इसमें एंगल DEC प्लस BFC का सम निकालना है इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शंस विच आर गिवन टू यू. सो अब आप सोचिए, आपको ऑप्शंस को ट्राई करना है या आपको कैसे आंसर निकालना है. इसके बहुत तरीके हो सकते हैं निकालने के. इट कैन बी सॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज. तो ऑप्शंस आपको दे रखी हैं BCD माइनस BAD, BAD प्लस BCF एंड BAD प्लस BCD. थोड़ा सा ओके, लेट मी इनिशिएट. थोड़ा सा इसको आप ऐसे देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, इन क्वेश्चन में होता क्या है कि आप ये BAD BCD नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं. सबसे पहले तो इसको मार्किंग कर लीजिए, 1 2 3 1 4. तो आपको सॉल्व करना इजी होगा. ठीक है ना? सारे मैंने एंगल मार्क कर लिए 1 2 3 4. अब मुझे पूछा गया एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब इसको सोचना कैसे है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. 1 प्लस 2 सबसे पहले आप देखो किन ट्रायंगल्स में आ रहा है. ये आ रहा है ट्रायंगल EAB. 1 आ रहा है EAB में, और 2 आ रहा है FDA में. Got it? Okay, a lot of people are saying A. Seems A is the answer. तो ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल से फोकस करो. अब इनको किसी तरीके से ट्राई टू रिप्लेस एंगल 1 एंड 2 इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो यूजुअली इसमें एंगल 6 है, एंगल 3 है, दीज काइंड ऑफ एंगल्स आर देयर. तो एंगल 3 को तो तुम इजीली रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ कर सकते हो. अब फिर तुम्हें देखना है कि एंगल 6 जो क्वेश्चन जो ऑप्शन में आ रहा है बार बार, ये 6 एंगल कैसे आएगा. इसका एक तरीका ये है कि यू कंसीडर द क्वाड्रिलेटरल ADCB. इसमें आपको एंगल 6 मिल जाएगा जो कि ऑप्शंस में आ रहा है. तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोचा जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो आई थिंक इसमें काफी मैं आपको दे दिया हिंट. एंड गुड. अनमोल, ध्रुव, करणदीप, यू आर ऑल राइट. आप सबका आंसर सही है. मनप्रीत वाज द फर्स्ट वन. तो इसमें आपने कैसे करना है, सबसे पहले इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वुड से, इफ यू गेट द आइडिया. तो एंगल 1 in this triangle, angle 1 is equal to 180 minus 3 minus angle 5. All right. Now in triangle EAB, in triangle FDA,
एंगल 2 is equal to 180 minus 3 minus angle 4, right? So angle 1 plus 2 would be, you simply have to add these two, 360 minus angle 3 minus angle 5 minus angle 3 minus angle 4. So this is the value of angle 1 plus angle 2, right? तो आपको इस पार्ट को बेसिकली कन्वर्ट करना है ऑप्शंस की फॉर्म में, और ऑप्शन में एंगल 6 आ रहा है बार बार. एंगल 6 इज नथिंग बट सी द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ABCD angle 6 is equal to 360 minus 345 minus angle 3 minus angle 4 minus angle 5. So simple, इस एंगल 6 की वैल्यू ये आ गई. अब इस टर्म को आप रिप्लेस कर दीजिए ऊपर, तो क्या आ जाएगा? Therefore angle 1 plus angle 2 is angle, it would be angle 6 angle minus angle 4, because 360 minus 3 minus 4 minus 5 is angle 6, and एक बचा angle 3, sorry, in terms of instead of 4 is 3. So this is the answer, this is option A. Now Manpreet is saying something. Yeah, Manpreet, I would love to listen to your solution. Please speak out. Sir, I have used external angle property of a triangle. I have added angle BAD plus angle BFC. BAD plus BFC, okay. Equal to angle EDC. Right, angle 9, ठीक है. And second equation I have made is angle DEC. Okay. Plus angle EDC. Okay. Is equal to angle DCB. ठीक है. Sir, then I added both of these terms. 9 plus 1. When you add these two, basically Yes, you sir. get 6 equal to 1 plus 2 plus 3. Sir, angle EDC will be cancelled out from both of the equation, and we will be having only Good. This is a very good DCB solution. minus angle BCD. This is a very good solution, Manpreet. Yes, sir. Impressive. Is this solution of Manpreet clear to everybody? Manpreet hasn't used. No, okay. Equal, I'll explain. Manpreet basically hasn't used the property of this quadrilateral, which I used is the sum of angles is 360. He simply used the property of triangle called exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. So first of all, you guys focus on this triangle. इसमें इस ट्रायंगल में angle 9 is the exterior angle, which is equal to 2 plus 3. Now you focus on this triangle. यहाँ पर क्या है? 6 is the exterior angle, which would be equal to 1 plus 9. बेसिकली इसका लॉजिक क्या है मनप्रीत का, कि इसने वो वाले ट्रायंगल्स लिए हैं, वो वाला एक्सटीरियर एंगल लिए हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है. हमें 6 रिक्वायर्ड था, इसने 6 ले लिया, राइट. और अब क्या करना है, हमें आंसर्स में 3 भी रिक्वायर्ड है. तो इसने जो 9 जिसने फर्स्ट इक्वेशन ली, इसने इसमें 3 वाला पार्ट ले लिया. इस हिसाब से इसने ट्रायंगल चूज किया.
इससे हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई, दिस एंड दिस। इन दोनों को when you add up you get 6 is equal to 1 plus 2 plus 3, which means angle 1 plus 2 is equal to 6 minus 3. That is your answer. ये रब क्यों हो रहा है? ये रब हो गया सारा. I just use the highlighter. ये डायग्राम फिगर अपने आप रब हो गया. Does anybody has any idea by? चलो, this is the way how to solve this problem. Let's move on to next question. Okay, I have to lock it out. All right. I have to ओके, मैं इसको देखता हूं, तब तक आप लोग I'll see to it. Till then you try question number 14. Question 14. It seems to be a good question. Try it on the whiteboard. Write on the whiteboard. So मैंने सेटिंग्स की ठीक कर दी है, नो प्रॉब्लम. जस्ट can you all see me and hear me? Okay, all right. So carry on this question. In 14.
And friends, one more thing. From tomorrow, I think we'll be having a two hour session on alternate days. तो मैम आपको बता देंगे जैसे भी होगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके। शाम का टाइम ही रखेंगे हम लोग। हाँ, तो somebody has come up with an answer C, करणदीप। तो करणदीप अभी देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इनइक्वालिटीज का, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। तो जिन लोगों को इनइक्वालिटीज थोड़ा सा जिनका वीक है कुछ है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली वही उठाने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने आपसे पूछा भी था बिफोर स्टार्टिंग ज्योमेट्री, आई आस्क्ड यू शैल वी स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ्स, बिकॉज मुझे पता था कि इस पार्ट के बिना यू कैन नॉट हैंडल ज्योमेट्री। काफी जगह यूज होता है ये, बट यू गाइज वांटेड ज्योमेट्री, तो हमने ज्योमेट्री उठा लिया।
So I would recommend this, we should pick up this chapter next after geometry. Some people are saying C. Faisal, Manpreet, Karandeep. A. Somebody saying A. Ankur. तो देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा सोचिए कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ये आपको दे रखी इक्वेशन एक ही है, तो हिंट बस ये है कि इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए इंडिपेंडेंटली। लाइक दिस इक्वेशन विल गिव, फर्स्ट इक्वेशन विल गिव some lines on the x and y axis, then second equation will give some another lines. तो जो उस लाइन से एरिया इनक्लोज होगा, दैट इज योर S1। तो इनक्लोज्ड एरिया निकाल लीजिए आप। इसी तरह आपका S2 आ जाएगा। तो दो एरियाज आपके आ जाएंगे S1 और S2, उनका जो यूनियन होगा, दैट इज योर आंसर। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, काफी टाइम दे दिया। कभी भी अगर मॉड आता है क्वेश्चन में, तो उसको इसका ऐसे आप हैंडल कर सकते हैं कि दो केस बन जाएंगे। दिस y इज इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक ये केस हो गया। इट मीन्स x is less than equal to 3 for x greater than equal to 1। दूसरा केस बनेगा आपका x माइनस 1 बाहर आ जाएगा माइनस साइन, इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर x लेस देन 1। इट मीन्स माइनस x plus 1 less than equal to 2, x is less than equal to 1, x is greater than equal to minus 1 for x less than 1. This is second case. This is case 1. इसको आप प्लॉट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि x 3 से छोटा है मगर 1 से बड़ा है, तो ये वाला पोर्शन आ गया, राइट। और इसका मतलब क्या है कि x 1 से छोटा है लेकिन माइनस 1 से बड़ा है, तो बेसिकली जो 1 है वो दोनों में इंक्लूड हो गया। तो मीन्स so basically it goes from minus 1 to 3, right? अब अगला पार्ट, y plus 2 is less than equal to 3। इसमें भी दो केस बनेंगे। when y it would be plus y plus 2 less than equal to 3 when y is greater than equal to minus 2। It means y is less than equal to 1
y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। एक ये केस बन गया और एक बन जाएगा माइनस ऑफ y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3 when y is less than -2. It means minus y less than equal to 5. For y is greater than equal to -5. For y less than -2. ये दो केसेस बन गए आपके, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को आप प्लॉट कीजिए y1 से -2 and -5 से -2। So basically 1 से -2 and इसको बढ़ाना and -5 से -2 means -5 से -2। बेसिकली y ने पूरा पोर्शन ने कवर कर लिया। इज इट क्लियर? तो y बेसिकली टोटल रेंज y की आ गई -5 से 1। y की रेंज ये आ गई। ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट्स डाली है मैंने। गॉट इट? इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स। इट मीन्स दी वैल्यू एट दैट पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, यहां पर इंक्लूडेड है। एंड सिमिलरली x की वैल्यूज आ गई -1 से 3, बोथ इंक्लूडेड। तो दो वैल्यूज आपकी आ गई, इनकी रेंज आ गई। एंड दे आर काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द ग्राफ। ये आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो चीज है एक ये चीज है और एक ये चीज है। इनको अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पोर्शन एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी लेंथ होगी ये और हाइट होगी ये। बेसिकली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई दिस लेंथ बाय दिस विच इज 4 into 6, 6 into 4 is nothing but 24. 24 is the unit square because units are not given. Now अगर ये पार्ट क्लियर है तो इस पार्ट के आगे देखें। S2 की बात करते हैं हम। S2 में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आपको इक्वेशंस दे रखी हैं x माइनस वाई greater than equal to -2, y is greater than equal to 1 and x less than equal to 3. सबसे पहले तो इन दो को मार्क कर लो, ये इजी लग रहे हैं। y is greater than equal to 1, this is y is equal to 1, तो y इन सबसे इस लाइन से ऊपर होगा।
for any value of x, this equation means y is greater than equal to 1. तो ये वाला एरिया सारा रिप्रेजेंट कर रहा है. ये इनइक्वालिटी जो है, it is representing this area of the graph. Now this inequality x less than equal to 3, ये जो है x 3 से हमेशा कम होगा. ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है. अब बची कौन सी इनइक्वालिटी? ये वाली. इसको आप प्लॉट कर लो. When y is 0, x is equal to -2. When x is 0, y is equal to 2. ऐसी लाइन आ गई. This is how you plot a line, right? और इनइक्वालिटी देखोगे, इनइक्वालिटी कहती है, जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका जो होता है कि जस्ट पुट x एंड y इक्वल टू 0. तो 0 is greater than equal to -2. It means, and that is correct. So it means this is satisfying this equation. 0 is satisfying. So it means ये वाला एरिया होगा. यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? इसका मतलब क्या है? हमारा कॉमन एरिया कौन सा हुआ? कॉमन एरिया आपका हुआ क्लियर है यहां तक? अब इस कॉमन एरिया का आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. अब वो कैसे निकालते हैं? अब आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं. ये जो लेंथ है कितनी है? व्हाट इज दिस लेंथ? -1 से 3 तक है. मीन्स इट इज 4. और इस ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए क्या करोगे आप? दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस यू नो इज 1. तो इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लो, इसका और इसका. इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 3 को इस लाइन में पुट कर दो. x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो your y would be 5. It means y is 5 यहां पर. तो 5 minus 1 is 4. 5 minus 1 is 4. It means the height is 4. Base into height into half is the area of triangle. कितना आ गया? 8 यूनिट स्क्वायर. यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? अब हमें क्या करना है? S1 और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यूनियन ऑफ S1 एंड S2. union of S, this is your S2 of this triangle, और S1 हमारा यहां पे था रेक्टेंगल, राइट? तो आप देख सकते हैं यूनियन में क्या होता है. एक होता है आपने सेट्स, इसमें सेट्स वाला फंडा भी यूज हो रहा है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ इन्होंने डाल दिया, सेट्स, इनइक्वालिटीज, इक्वेशंस. तो एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन. Intersection means the common area between two sets, जो दोनों में हो. And union means total of A plus total of B minus जो हमने दो बार ऐड कर दिया हो.
minus the intersection, right? So A union B means A plus B minus A intersection B. मे भी आपको ये चैप्टर अलग से है बेसिकली, सेट्स थ्योरी बोलते हैं इसको, सेट्स पे है ये। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो यूनियन होती है दो सेट्स की वो ये होती है। तो आपने A प्लस बी तो कर दिया, 24 प्लस 8 कितना आ गया, 32, 24 प्लस 8 हो गया A प्लस बी। बट माइनस A इंटरसेक्शन B भी तो करना भी आपको। अब देखते हैं A इंटरसेक्शन B क्या है। ये यहां तक 1 तक खत्म हो जा रहा है, 1 से ऊपर नहीं बढ़ रहा, लेकिन इस वाले में सारी जो कहानी है वो स्टार्ट ही 1 से ऊपर हो रही है, इस लाइन से ऊपर हो रही है, और वो यहां तक आते आते खत्म हो जा रहा है। तो इट मीन्स द इंटरसेक्शन इज 0, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन ग्रुप A एंड B, सो इट मीन्स -32 माइनस 0। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि 32 हमारा क्यों आया? तो इसका कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? आई थिंक सी है, सी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को आपने, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हुए हैं। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट तो आप प्लीज पूछिए। बाकी हम इसको करेंगे अच्छे से। अभी एक चैप्टर इसका आता है इनइक्वालिटीज, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसकी, उसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप लोगों को। हाँ रोहन, आई कैन अंडरस्टैंड। रोहन, आपको एसक्यू कंफ्यूजिंग लग रहा होगा और सच में कंफ्यूजिंग है। देखो देखो रोहन, इसमें क्या हो रहा है, ये आपका ग्राफ है, y इक्वल टू 1 मान लो और x 3, ठीक है। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो ये एक लाइन y इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 3 है। और जो तीसरी लाइन है आपकी वो है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये मैंने इनइक्वालिटी प्लॉट नहीं करी अभी, सिर्फ मैंने लाइंस प्लॉट करी हैं। अब जब इनकी इनइक्वालिटीज प्लॉट करेंगे कि इन लाइन की डायरेक्शन देखेंगे आप कि आपको कौन सा एरिया कंसिडर करना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे, तब आपकी जो डायरेक्शन निकल के आएंगी, फ्रॉम देयर यू विल फाइंड कि द कॉमन एरिया ऑफ दीज comes out to be this. This is the common area. अब आपको इस बात का ध्यान रहे कि यहां तो चलो ट्रायंगल आपका आ गया, मान लिया, बट कई बार ऐसा होगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका कोई ओपन एरिया आ जाएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस आपका एरिया कुछ ऐसे ही, कुछ रैंडम सा ओपन जैसे कि आ सकता है कि लाइक एक लाइन तो ये वाला एरिया बोल रही है, ये वाली लाइन ये वाला एरिया बोल रही है, कुछ आप कॉमन ही नहीं निकाल पा रहे, तो उसका कुछ कॉमन एरिया नहीं निकालना, उसका 0 होगा कॉमन एरिया। बट इस केस में दिस एरिया इज कमिंग बिकॉज हमें ये इनइक्वालिटी यहां पॉइंट कर रही है, ये लाइन की इनइक्वालिटी यहां पॉइंट कर रही है और इसके ऊपर। तो अभी तो इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी दोस्त, थोड़ा सा मैं कराऊंगा। दिस इज हाउ इट इज।
डोंट वरी, जिसको अभी भी समझ नहीं आया चिंता मत करो आप लोग, इट इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, मैं खुद कह रहा हूं। और इसका सोल्यूशन भी आपको हर बुक में शायद ना मिले, बट मैंने कहा ना एक या दो क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड में जो आपको डिफरेंस क्रिएट करेंगे। बाकी तो एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन तो इजी होते हैं। तो ये ऐसे है। आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करेंगे, टाइम हो गया है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज करो, इनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस करो आप लोग, ठीक है। फिर भी किसी को इसमें कोई डाउट है, मान लो अभी भी किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया, या कौन वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये और हमने कौन सा किया है, एक और क्वेश्चन किया है, तो आपके मैं डाउट्स दोबारा से ले लूंगा। एक हम दिन रख लिया करेंगे ना, जैसे वी कैन कीप अ डे कॉल्ड। अब हम ट्यूसडे ऑल्टरनेट करते हैं, तो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हम, सॉरी, सैटरडे कैन बी हाफ ऑफ द टाइम कैन बी क्लास एंड द रेस्ट हाफ कैन बी डाउट्स। ऐसा कर सकते हैं आप लोग, राइट। तो इसका सोल्यूशन ये है। अब आप लोग घर में कुछ, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 12 लिख लीजिए आप। 7, 8 एंड 12। ठीक है, ये आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, एंड बाकी उसके बाद और क्वेश्चंस हम लोग फिर देखेंगे जो हमारे रह गए हैं। एंड ऑल राइट देन स्टूडेंट्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। Anybody wants to discuss anything, or all good? All right. So that's it for the class today. Thank you very much. Best of luck.